So, guys, today we are going to start about the entrepreneurship in digital marketing. What to sell to whom, at what cost is very important aspect that we are going to learn. Okay, so first of all, welcome everyone for this wonderful morning and something exciting, something new that we are going to discuss. So these are the pointers that we are going to cover in the today's session. So first of all, what is marketing and what comes under digital marketing? And it's very important point to be noted that it's marketing, it's not sales. So in India, we always, we have a habit to uh, combine the sales with the marketing and marketing with the sales, but it's not the truth. Both are different methodology. Then what are the standard rates for website designing, SEO, social media optimization, paid ads? Okay, how you can identify your best customers and digital marketing strategies. Okay, so this is going to be the roller coaster ride. So please be seated, and it may extend more than an hour depending on the discussion that we are going to have in the session. Request everyone, please come on the camera so I will understand only you're listening, not your devices listening. So first baby step that we have learned in this session is the designing a website, and we learn WordPress as a platform. So by considering the WordPress as a website designing platform, we can quote, this is standard size, these are the standard market rates. Okay, it's not compulsory that you have to sell at this cost, but you may start with this and then you can extend, okay, as per your caliber and as per your convincing power. So first of all, domain and hosting is the basic fundamental expenses that we are going to have in the website designing. Okay, so first domain, we are going to cost around 1,000 rupees, and the hosting is around 1,500. So if, hope you remember, we have taken the topic called GoDaddy, where we have seen which domain cost what amount. So here I have just considered we are going to give the 1,000 rupees of domain. ऐसा नहीं है कि आप 50,000 वाला डोमेन इसको नहीं दे सकते, तो उसको 1,000 रुपए को हटा के वहां पे 50,000 डाल दो, क्योंकि एनी विच भी आप क्लाइंट से लोगे और गोडाडी को दोगे, बीच में आपका इसमें कुछ है नहीं. Okay, hosting charges for a first year around approximately 1,500. ओके, इसके अलावा हमारे बहुत हिडन एक्सपेंसेस होते हैं. ओके, आई डोंट नो आप में से किसने मार्केटिंग या सेल्स किया है, तो आपको बेसिकली इंटरनेट लगेगा, आपको लाइट लगेगा, वाईफाई आपको कॉलिंग करने के लिए लगेगा, और आपको क्लाइंट विजिट भी करनी पड़ेगी. ओके, सो उसके एक्सपेंसेस अगर आप कंसिडर करते हो, सो विच गोज अराउंड 2,500. सो अगर मैं पूरा पकड़ के चलूं, 1,000 plus 1,500 plus 2,500, which is approximately 5,000 rupees are expenses. Okay, and then the 5,000 expenses के ऊपर अगर मैं 5,000 प्रॉफिट पकड़ता हूँ, ओके, टोटल एक्सपेंसेस के, मतलब तो मैं 10,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली एक वेबसाइट बनाने का कोट दे सकता हूँ. ठीक है, understood. 10,000 rupees can be the quotation for a website designing on WordPress. Okay, and this is for a year. ये पूरे एक साल के लिए है. अब इसमें हम लोग क्या देंगे? What we are going to give? डोमेन एक साल के लिए, होस्टिंग एक साल के लिए. ओके, क्या हम लोग कंटेंट और इमेजेस इसमें दे सकते हैं? सो आइडियली नहीं, इतने लो कॉस्ट में हम लोग नहीं दे सकते. सो वी हैव लर्नड कैनवा. सो यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस किया, कैनवा पे इमेजेस बनाने के लिए थोड़ा बहुत टाइम तो जाता है, कंटेंट लिखने के लिए थोड़ा बहुत टाइम जाता है. ओके, आप अगर उसके कॉम्पिटिटर का कंटेंट कॉपी पेस्ट करके डालोगे, वी हैव सीन इन एसईओ कि कॉपीड कंटेंट विल नॉट स्टैंड एनीवेयर इन द एसईओ रेस. So you cannot win the race if you are copied someone content and paste it on the website. That means you have to write the content. और कंटेंट राइटिंग का क्या मैंने चार्ज बताया था, याद है? मैंने पर वर्ड बोला था कंटेंट राइटिंग का चार्ज. Yes. कितना था वो?
3 3 to 5 रुपीज पर वर्ड नहीं सर, 3 to हाँ 5 पर रुपीज वर्ड था, आपने कुछ पर वर्ड था या पर पर वर्ड था, वर्ड पर वर्ड था, 5 रुपीज पर वर्ड वर्ड या था? 3 रुपीज वर्ड थ्री था। 3 to 5 वर्ड, 3 to 5 रुपीज पर वर्ड, यस। 3 to 5 रुपीज पर वर्ड का कंटेंट आप उसमें लिख सकते हो। ओके, तो उस राइट। हिसाब से आप उसको चार्ज कर सकते हो। जस्ट जस्ट वन क्वेश्चन, जैसे सर अगर आप कह रहे हैं कि हमने डोमेन और होस्टिंग 1 ईयर की दी है, तो आफ्टर 1 ईयर फिर मतलब उसको रिन्यूअल वहां के लिए पे वो हमें पेमेंट करेगा या वो रुको, खुद पूरा करेगा? पॉइंट खत्म होने, होल्ड ऑन, पूरा ओके पॉइंट सर। खत्म होने दो, आई विल एक्सप्लेन। ओके, सो ये तो ये होने के बाद वी आर नॉट गोइंग टू गिव द पेड थीम एंड पेड प्लगइन, उसका अलग से आप चार्ज लगा सकते हो। ओके, एंड यू कैन डिजाइन वेबसाइट अप टू 10 पेजेस, 10 to 20 पेजेस मैक्स टू मैक्स आप वेबसाइट को बना सकते हो, क्योंकि सिर्फ पेजेस बना के फायदा नहीं है, उसमें आपको कंटेंट भी अलाइन करना पड़ेगा। ओके, एक एक क्वेश्चन है रोहित, ये जो आप कह रहे हो 10 पेजेस, यू आर सेइंग अप टू 10 पेजेस फॉर रुपीज 10,000, यस। which includes domain, which includes hosting, which includes तो मतलब बचा ही क्या है फिर? नहीं, तो उसमें सिर्फ डोमेन होस्टिंग ही है ना, कंटेंट कंट का और इमेजेस मैंने लिखा है फ्रॉम द क्लाइंट साइड, इट विल कम फ्रॉम द क्लाइंट साइड, एंड वी आर गोइंग टू यूज द फ्री थीम एंड फ्री प्लगइन। सो उसमें और कुछ एक्सपेंसेस है ही नहीं, और बाकी के जो खर्चे वो 2500 में आ गए, तो आपको 5000 रुपीज प्रॉफिट बचता है। सो दिस इज बेयर मिनिमम, दिस इज बिगिनिंग। बट आप हमने इसको 30,000 में भी बेच सकते हो। नहीं, तो रिसोर्स का कॉस्ट तो आपने लगाया ही नहीं, जो रिसोर्स बैठेगा काम करेगा उसका भी तो तो कॉस्ट जाएगा ना। टाइम, टाइम इज यस, वन तो फैक्टर। इसके लिए वो टाइम को कंसीडर करते हुए हम लोगों ने सिर्फ 10 पेजेस ही रखे हैं। सो फॉर डिजाइनिंग अ 10 पेजेस, वट एवर अमाउंट इज गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड is दिस considered इज द in the, मार्केट रेट फॉर द वेबसाइट। yes, for 10 pages. ओके। आफ्टर 1 ईयर क्या होगा कि डोमेन एंड होस्टिंग का अप्रोक्सीमेटली रिन्यूअल कॉस्ट होगा 2500, और उसके आगे हम लोग उसको एएमसी चार्ज कर सकते हैं। सो एएमसी इज एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट विच वी कैन टेक अप टू 300 to 500 रुपीज पर आवर के हिसाब से हम लोग उसको लगा सकते हैं। सो जितने का एएमसी, मतलब कुछ पेजेस को ऐड करना है, एडिट करना है, डिलीट करना है, कितना टाइम लगेगा आप उसको देख लो, उस हिसाब से आप इसको एएमसी को कैलकुलेट करके उसको बता सकते हो। और आप उसको एक बार एडिटर एक्सेस दे देंगे तो हो सकता है वो भी आपके खुद अपने तरफ से कुछ चेंजेस करा सकता है, लेकिन एडमिन एक्सेस हमें नहीं देना है। ओके, सो दिस इज बेसिक वेबसाइट नहीं, ऑन वर्डप्रेस। एडमिन एक्सेस, सी ही वी हैव बिल्ट द वेबसाइट राइट। हम उसको ये थोड़ी बोल सकते हैं इफ ही वांट्स टू चेंज वेंडर इन अ ईयर और 2 years, राइट? दैट इज कंप्लीटली अकॉर्डिंग टू हिज डिस्क्रिशन, राइट? तो हम एडमिन एडमिन क्यों नहीं देंगे? मतलब इट इज हिज दिस थिंग ना। नहीं, एडमिन एक्सेस दे देंगे ना तो वो थीम चेंज कर सकता है, जैसे ही थीम चेंज हो जाएगी कंटेंट का अलाइनमेंट चेंज हो जाता है, जिसके वजह से आपका काम डबल होता है। इसके लिए हम लोग बस उसको एडिटर एक्सेस देंगे सो दैट ही कैन ऐड न्यू पेजेस और ही कैन एडिट एग्जिस्टिंग पेजेस, दैट्स ऑल, नथिंग एक्स्ट्रा कैन बी डन। सिर्फ उतना ही वो कर सकता है, एक तो नए पेजेस को ऐड कर सकता है या एग्जिस्टिंग पेजेस को एडिट कर सकता है, उसमें भी होम पेज को छोड़ के। ओके, बाकी के जो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज या ब्लॉग्स वो लिखेगा, उसको वो बस एडिट कर सकता है, या नए ब्लॉग्स, नए पेजेस को वो डाल सकता है, दैट्स इट, नथिंग कैन बी डन अपार्ट फ्रॉम दैट। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ वेबसाइट डिजाइनिंग। ओके, तो ये एक बेसिक वेबसाइट आप बना सकते हैं 10 पेजेस में, जिसमें होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज, ब्लॉग्स, ये सब पेजेस इसमें आ जाते हैं। अगर ई कॉमर्स वेबसाइट अगर आप बनाना चाहते हो तो उसका कॉस्टिंग पूरा अलग जाता है, सो दैट गोज अराउंड 25,000 to 50,000 डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। अब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब अभी मेरे पास अगर ऑयल है तो ऑयल मेरा 250 ml, 500 ml, 1 लीटर, 5 लीटर, अगर इस रेंज में है तो हर एक एसकेयू को काउंट किया जाता है, और हर एक एसकेयू के बेस्ट हम लोग उसको प्रपोजल देते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पास
एक ऑयल है, एक पाउडर है और एक साबुन है, सिर्फ 3 है, ऐसे नहीं है। उसके जो मल्टीपल फ्लेवर्स, उसके अंदर अवेलेबल साइजेस सबको कंसिडर करके हमें उसको कोटेशन देना पड़ता है। और वो SKU is selling cost per नहीं unit. नहीं नहीं नहीं, स्टॉक कीपिंग यूनिट। Okay. आपके पास कितने यूनिट स्टॉक है, Okay. उसको हम लोग SKU बोलते हैं। Mm-hmm. ठीक है, तो उसमें होस्टिंग का कॉस्ट 1,500 रुपये डेफिनेटली नहीं होगा, होस्टिंग हमें ज्यादा लगेगी। तो हो सकता है 5,000 रुपये का होस्टिंग लगे। फ्री थीम में काम नहीं चलेगा, तो हमें पेड थीम लेनी पड़ेगी, पेड थीम आएगी 4 से 5 हजार रुपए की। ओके, तो इस हिसाब से कॉस्टिंग जो है वो बढ़ जाता है। बट दिस इज अ बेसिक वेबसाइट जो आप एक 10,000 रुपए में बना सकते हो, ये बिगिनिंग है। ओके, आप अभी उसको 40,000 भी पुट कर सकते हो फॉर सेम थिंग, बट ये आपके कन्विंसिंग के ऊपर है कि आप वो आपको 40,000 रुपए क्यों दे इसी काम के लिए। ये मार्केट में बिगिनिंग रेट है। एक आपने बात बोली कि पेड थीम, राइट? What exactly do you mean by paid theme? Are you talking about the UI UX or what are you talking about? नहीं, अभी ये जो थीम्स होते हैं ना, थीम्स हम लोग अभी जो वर्डप्रेस में हम लोगों ने देखा था कि जो फ्रंट पेज होता है, फ्रंट पेज का जो आप उसको UI UX बोल सकते हो, तो वो जो है वो फ्री अगर हम लोग लेंगे तो हमें कुछ पैसा देना नहीं पड़ता, लेकिन उसमें कस्टमाइजेशन या एडिटिंग एक लिमिट में होता है। ओके। जैसे कि आप फ्री थीम में फॉन्ट चेंज नहीं कर सकते, फॉन्ट साइज चेंज नहीं कर सकते, कलर कॉम्बिनेशन चेंज नहीं कर सकते। वही अगर आप पेड थीम में जाते हो तो आपको पैसा जरूर लगेगा, लेकिन आप ये चीजें उसमें कर सकते हो। वर्ड और अभी अनफॉर्चुनेटली इन 2023 यू कैनॉट यूज वन पेड थीम फॉर मल्टीपल डोमेन्स। एरर आता है बीच में, वैसे आप मतलब उसको की पास करके यूज कर सकते हो, लेकिन कहीं कहीं एरर आ जाता है। तो उसमें कंपोजर्स भी आते हैं, एलिमेंटर नाम का कंपोजर है, तो या डीवी नाम का एक कंपोजर है। तो कंपोजर को अनलिमिटेड डोमेन्स के लिए लेके भी आप वेबसाइट को वर्डप्रेस में बना सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल वेज, बट दिस इज द बिगिनिंग। तो अगर आपको आइडिया लगना चाहिए कि वेबसाइट बनाने के लिए कैसे चार्ज करते हैं, सो दीज आर फ्यू मेथड्स फ्रॉम विच यू कैन चार्ज द डिजाइनिंग ऑफ वेबसाइट। और कभी भी किसी को पहले कॉल में आप ये मत देना, कोटेशन मत देना, फर्स्ट अंडरस्टैंड हिज रिक्वायरमेंट, what he wants to have, whether he wants to have a e-commerce website, whether he wants to have a normal website but having multiple pages, कितने पेजेस बनाने हैं वो भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ओके, अगर क्लाइंट बहुत ज्यादा नेगोशिएट करे इन द सेम कॉस्ट, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गिव द व्हाट्सएप इंटीग्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, यू कैन गिव द फेसबुक पेज इंटीग्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। कॉन्टैक्ट अस का आपको तो बना के देना ही पड़ेगा। ओके, होम पेज पे आपको इमेज स्लाइडर्स डालने पड़ेंगे अलग अलग। ओके, तो ये सब चीजें आप उसको नेगोशिएशन के टाइम दे सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चंस? So this is just a first basic intro, मतलब basic website के लिए ये quotation है। As the number of pages increase, as the requirement increase, e-commerce के लिए अलग costing है। ओके, अगर मेरे वेबसाइट पे 50 पेजेस है उसके लिए अलग कॉस्टिंग है। अगर मुझे डोनेशन एक्सेप्ट करना है या पेमेंट एक्सेप्ट करना है, सो पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन का अलग कॉस्टिंग होता है। हम लोगों ने ई कॉमर्स में देखा था, याद है, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन। जैसे अभी शार्क टैंक में ये कैश फ्री पेमेंट्स बहुत पॉपुलर हो रहा है। कैश फ्री पेमेंट्स पे यू मनी पे, या अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे तो पेपाल या स्ट्राइप। सो ये कुछ पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन से जो आपको आपके वेबसाइट पे इंटीग्रेट करना पड़ता है विथ, एंड दिस विल बी एसोसिएटिंग विथ योर बैंक अकाउंट। तो मैं आपके वेबसाइट से पेमेंट करूंगा, लेकिन वो आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। चार्जेस भी होते हैं उसके, कुछ परसेंटेज चार्जेस? हाँ, तो इंस्टॉलेशन के हमें एक 3 से 5 हजार रुपए हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको क्लाइंट और वो कंपनी इसके साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, और चांसेस है कि क्लाइंट के बैंक के साथ भी आपको कम्युनिकेट करना पड़े। और तो दूसरा क्या बोला सर, ये पेमेंट गेटवे का है इंटीग्रेशन, और कोई इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस आपने बोले थे पहले?
और बाकी कुछ नहीं, पेड थीम का चार्जेस आप ले सकते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए अलग चार्जेस ले सकते हो। हाँ, ई कॉमर्स के लिए अलग, नहीं, एक बात क्योंकि बोली उसमें कि प्रोडक्ट पेड ऐड करने हैं इसलिए क्या? हाँ, और क्योंकि आपको इतना लगता है कि प्रोडक्ट ऐड करना मतलब सिर्फ फोटो डालना उतना नहीं होता है, नहीं है, हाँ, प्रोडक्ट का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है, राइट राइट। कितने SKUs है, उसकी अभी सेलिंग कॉस्ट अगर 1000 है और उसका डिस्काउंट अभी 700 रुपीज है, आपको कूपन जनरेट करने हैं तो कूपन जनरेट करके दे सकते हो। ओके, तो इसके सर लिए ई वन कॉमर्स थिंग, वेबसाइट, बोलो। आप कह रहे हैं कि पेड थीम जो है वो आप एक ही बार यूज कर सकते हैं, तो अगर हम डिफरेंट वेबसाइट्स पर यूज कर रहे हैं तो फिर थोड़ी ना उस पर कुछ फर्क पड़ रहा है। नहीं, तो आप उसके लिए मल्टीपल डोमेन का ऑप्शन हर एक पेड थीम में आता है, एक आता है सिंगल डोमेन, एक आता है मल्टीपल डोमेन, तो एक्स्ट्रा एक चार्जेस ओके, लगते हैं। लगते हैं, तो आप मल्टीपल डोमेन्स के लिए यूज कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन ये थीम होता भी है कि है, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज में घुसना है तो थीम्स ओके को सर, लेने से अच्छा है बिल्डर को ले ये लो, कर लो, हाँ, डीवी या फिर एलिमेंटर। एलिमेंटर है, किंग्स कंपोजर है, उसको ले लो। ओके, ओके सर, तो उससे फिर हम अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं उसको। सर ये अगर मल्टीपल डोमेन्स के लिए यूज कर सकते कूपन का है, जैसे ई कॉमर्स में कूपन लगाते हैं तो उसका इंटीग्रेशन अलग से रहता है, प्लगइन रहता है उसका? हैं। नहीं नहीं, वो कॉमर्स में ही है ना कूपन्स का ऑप्शन, वहां पे जाके आपको बस कूपन का नाम डालना है, जैसे स्विगी हम्म। 60% ऑफ अप टू ₹2, तो आप वहां पे डाल सकते हो, नाम दिया स्विगी 60% ऑफ मैक्सिमम अप टू ₹2, सो नहीं, आप पर कितने वो का भी जैसे खर्चा हम करो। लोग अप्लाई करते हैं, देखो कूपन का कोड अप्लाई करते हैं, तो वो हाँ, कोड से ऑटोमेटिकली कैसे ये होता है, फिर मुझे वो तो नहीं। हमें कूपन सेट करना पड़ता है, वहां पे ऑप्शन आता है कूपन क्रिएट करके, ये कंडीशंस उसको फिल करनी पड़ती है। ओके ओके ओके, वो कंडीशन जैसे ही वो ये होगा, फुलफिल होगा, तभी वो एक्सेप्ट करेगा, राइट? यस यस, ओके। इसका मतलब आप लोगों ने कोई भी प्रैक्टिस नहीं किया है। नहीं, वो कॉमर्स का नहीं किया सर। वेबसाइट का कर रही हूँ, वो कॉमर्स का नहीं किया, सीधा बोल रही है। मेरी मेरी वही वेबसाइट मेरे सर पे जा रही है। बहुत डबल के काम ठीक है, हो गए मेरे पीछे। ठीक है। नहीं, बिकॉज आप ऑफलाइन कर रहे हो इसके हाँ, लिए, आई टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स, बट वो मैम ऑनलाइन। नहीं दे रहे, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? अभी भी वो बोले, उन्होंने 2 दिन लिए, पर वो बोल रहे कि नहीं तुम लोकल होस्ट पे करो। शायद उनको जो कांटेक्ट, मतलब जो ये है ना, होस्टिंग जो प्रोवाइड है ना, वो बंदे से कांटेक्ट नहीं हो रहा है मैम का, जिसने सब करके दिया, पहली जो वेबसाइट बनाई है। क्योंकि सर तो पहली वेबसाइट के लिए भी मैंने देखो आपको बोला था कि वो चेंजेस नहीं हो रहे। तो अभी आपने जैसे जो पॉइंट बोला ना कि एडिटर एक्सेस में ही वो पेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं, बट उसमें सर पेजेस ऐड हो रहे थे, बट थीम्स और प्लगइन्स नहीं हो रहे थे। तो तो शायद आपको उन्होंने, एडिटर एक्सेस है, एडमिन हाँ, एक्सेस नहीं है। और मैम बोल रहे आप कि एडमिन एक्सेस भी है, तो शायद एडमिन नहीं एक्सेस उसी के पास है, राइट? नहीं, आपको आपको अपीयरेंस का ऑप्शन आ रहा है क्या? नहीं, अपीयरेंस में हाँ, आ तो रहा है। नहीं नहीं, अपीयरेंस आ रहा है, थीम्स बट आ रहा है उसमें, अंदर नहीं आ रहा, थीम्स भी और मेन्यू भी, दोनों नहीं आ रहा है। तो आपको एडमिन एक्सेस नहीं दी गई। नहीं है, राइट? तो तो मैम अगर को होस्टिंग होस्टिंग पार्टनर से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, चेंज दी होस्टिंग पार्टनर एज सुन एज पॉसिबल। ओके, मैम को वैसे तो बोलना पड़ेगा। चलो, और कुछ डाउट्स है क्या इसमें? नहीं। आप ये सेम चीज को 20,000 में भी बेच सकते हो, लेकिन वो आपका स्किल है, कैसे कन्विंस करना है। इसको 1 लाख रुपए में भी बेच सकते हो, मैंने ये पे ट्रस्ट में मैंने 60,000 रुपए में भी वेबसाइट बनाई है सेम चीजों का, I लेकिन just वो साल था 2015, आज है 2023। नहीं, अभी नहीं, I just बहुत don't understand this that इतने कम कॉस्टिंग में, मतलब 10,000 में 10 पेज बनाना, it's like 2 दिन का काम है, हाँ। दैट्स व्हाई, बिकॉज हम लोग यहाँ पे खुद का कुछ भी यूज नहीं कर रहे, हम्म। ना फ्री ना पेड थीम यूज कर रहे, ना कंटेंट खुद लिख रहे, ना इमेजेस खुद बना हाँ रहे, तो सर हमको सब तो क्लाइंट कंटेंट से आके क्लाइंट बस। कॉपी पेस्ट करना है सर, कंटेंट का आया हुआ, मतलब जो क्लाइंट का आया हुआ कंटेंट एंड इमेजेस जो हमें मिली है, बस हमें तो उन्हें कॉपी पेस्ट करके और प्रॉपर्ली अरेंज ही करके यस देना है फिर उसको। यस, सो मैक्सिमम 2 या 3 दिन का काम है, लेकिन हम लोग दिखाते टाइम बता देंगे कि हफ्ता भर लगेगा, क्योंकि बंदा 10,000 रुपए दे रहा है, बोलेगा मैं 2 घंटे में करके दूंगा, तो नहीं, but अच्छा, still I feel बट it's सर मैं स्टार्ट really low. स्क्रैच से कर रही हूँ ना, मुझे बहुत, एक्चुअली मैंने एक वेबसाइट, जो वेबसाइट को मैंने पहले लिया था ना, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, टेम्पलेट को, वही टेम्पलेट को मैं एलिमेंटर से बना रही हूँ अभी एकदम स्क्रैच से।
मुझे बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि शायद मैं वो उसको कॉपी मतलब उसी के सेम कंटेंट को देख रही हूँ, तो वो मुझे मतलब डिजाइनिंग करने में बहुत टाइम जा रहा है। यही चीज जब आप ऑनलाइन शिफ्ट हो जाओगे ना, आपका 80% टाइम बच जाएगा। बाप रे, क्या बोल रहे हो सर, मेरे तो अभी 2 ही पेज बने क्रैश से पहले पूरी वेबसाइट बन गई थी, पूरी उड़ गई। सर है ना, एक चीज़ और है, जो हमारी प्रेजेंट वर्किंग वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है उससे मेरे हस्बैंड सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो मुझे कह रहे हैं कि आप इसको पूरा मतलब पूरा एडिट करके नया कर दो। तो फिर सर वो आप जिस हिसाब से कह रहे हैं वो मैं 4-5 दिन में कर पाऊंगी फिर? हाँ, तो पहले तो थीम फाइनलाइज करो हम्म। थीम फॉरेस्ट से। थीम फाइनलाइज हम्म। होने के बाद पहले एडमिन एक्सेस ले लो, वर्डप्रेस पे लॉगिन करो, थीम चेंज करो, कंटेंट को अलाइन करो, हो गया। ओके सर। ओके सर। ठीक है। आपकी ठीक है सर। अगर इनकी पेड थीम है तो सर? पेड थीम है तो पैसा लगेगा उसमें। नहीं, पहले वाली जो यूज किए हैं, अगर वो पेड थीम है तो? लेकिन वो डिजाइनिंग से सेटिस्फाई नहीं है ना, मतलब थीम से सेटिस्फाई नहीं है, तो उनको चेंज ऐसा ही आप बोल करना। रहे। हाँ सर, जैसे मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि वो मतलब जो मेरे हस्बैंड चाह रहे हैं ना उस तरह से वो प्रॉपर्ली डिज़ाइन नहीं है, तो वो मुझे ये कह रहे हैं कि जब तुमने वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखी है तो इसका एडमिन एक्सेस मैं दिलवा देता हूँ तुम्हें, जिससे मैंने कर रखा है काम। मतलब वो उसके वर्क से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि इससे अच्छा एडमिन एक्सेस मैं तुम्हें ही दिलवा देता हूँ और तुम ही उसको पूरा एडिट कर दो, पूरा डिलीट करके पूरा नया कर दो। डोमेन होस्टिंग तो हमारा ही लिया हुआ है उसमें। बट आपकी ठीक है। दूसरी वेबसाइट चल रही है ना? हाँ चल रही है। बेसिकली मेरे ट्राई हस्बैंड की उसी पे करना जो नहीं चल रही, नहीं क्योंकि मेरा नहीं एक्सपीरियंस बहुत बुरा है। नहीं प्रणति, मेरे हस्बैंड की 3 वेबसाइट चल रही है, तो जो सबसे कम हाँ, वर्किंग है ना राइट वो राइट मुझे राइट, वही आप उस हाथ पे में दे रहे एक्सपेरिमेंट हैं। कर सकते हो, राइट। हाँ। हाँ, वो मुझे कह रहे हैं कि तुम इसी पे जो करना है कर लो, मैं अपनी हम्म, वेबसाइट नहीं चढ़वा सकता तुम्हारे साथ। बराबर बराबर। अभी वो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सुनो मैं रनिंग रोहित सर फेज से में है ना। बात करके कर लूंगी। मैंने उनको कहा था मैं रोहित सर से बात करके कह दूंगी कि भाई मेरी हेल्प कर दो। बोले नहीं नहीं, मैं तुम पे रिलाई नहीं कर सकता, मैं सिर्फ सर पे ही रिलाई कर सकता हूँ, इसलिए तुम ऐसी वेबसाइट लो जो खराब भी हो जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़े। नहीं, खराब तो नहीं होगी डेफिनेटली। आप उन्हें काम कर सकते हैं, आप जब करेंगे ना मुझे बताना, या फिर क्लास के हाँ। टाइम आप कर लो, तो थीम परचेस हम्म। कैसे करना है वो भी सबको दिख जाएगा। थीम परचेस ओके करने के सर। बाद उसको अपलोड भी कर देंगे। ठीक है। ओके सर। ओके। हाँ सर, अगर ये बेसिकली आप आज करोगे तब मुझे बताना, हाँ मैं भी ज्वाइन प्रणोति, तो करूँ। मैं बेसिकली वही बोल रहा हूँ वी ना। हाँ, तो बेसिकली व्हाट वी कैन डू, आज मैं उसका पूरा है ना मतलब पूरा चेक कर लेती हूँ, क्योंकि आज मैं ऑफिस आई हूँ तो मैं पूरा वेबसाइट चेक कर लूंगी। फिर मुझे जहाँ से शुरू करना होगा ना आपके साथ में ज्वाइन कर लूंगी, मतलब हम सर से डिस्कस करके कर लेंगे फिर। राइट। ठीक है, चलो। ठीक है। सो ओके, वेबसाइट थैंक यू सो मच वेबसाइट में सर। कोई डाउट? नो। वेबसाइट में कोई डाउट? ठीक है, चलो। ना, एसईओ, अभी एसईओ के क्या बेसिक चार्जेस होते हैं? ओके। सो एसईओ के जो बेसिक चार्जेस होते हैं वो डिपेंड करता है कि कीवर्ड की कंपटीशन कैसी है। सो हम लोगों ने कीवर्ड कंपटीशन ये टर्म पढ़ी थी कि हर एक कीवर्ड को आपको फर्स्ट पेज पे लाने के लिए कितनी मेहनत लगेगी। राइट। अगर लो कंपटीशन वाला कीवर्ड है तो आप पर कीवर्ड उसको 1200 रुपए पर मंथ ले सकते हो। सो 1200 रुपए पर कीवर्ड पर मंथ है। ओके। उसके अंदर ये नहीं आप, समझ में आया, एक बार वापस बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं, लो अच्छा, कीवर्ड? लो कंपटीशन कीवर्ड, हाई कंपटीशन कीवर्ड याद है आपको? राइट। हाँ। तो अभी अगर कोई लो कंपटीशन वाला कीवर्ड है तो आप उसको पर कीवर्ड को 1200 रुपए पर मंथ ले सकते हैं। पर कीवर्ड पर मंथ इज 1200 रुपीज। वो कीवर्ड को लेके आप हफ्ते में 2 ब्लॉग्स लिखोगे, उसके अंदर 5 ऑर्गेनिक इमेजेस डालोगे और उसके 20 बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे। बैकलिंक्स याद है? ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ओके। तो ये काम आप 1200 रुपए में एक कीवर्ड के लिए करेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर मीडियम कंपटीशन वाला कीवर्ड है तो उसके लिए मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी, तो उसके लिए हम लोग 1500 रुपए पर मंथ पर कीवर्ड चार्ज करेंगे, जिसके अंदर हम लोग 3 ब्लॉग्स लिखेंगे। यहाँ पे हमें 50 ब्लैक की बैकलिंक्स क्रिएट करनी पड़ेगी और 15 इमेजेस। उसके बाद हम लोग
हाई कंपटीशन कीवर्ड को 1800 से 2000 रुपए के बीच में लिखा जाता है, क्योंकि हमें इसमें एवरीडे ब्लॉग लिख के 80 बैकलिंक्स क्रिएट करना होगा और 30 ऑर्गेनिक इमेजेस डालनी पड़ेगी। ओके, सो अभी मैं आपको एक कैलकुलेशन देता हूं कि अगर मेरे पास 3 लो कंपटीशन वाले कीवर्ड है, 2 मीडियम कंपटीशन वाले हैं और 1 हाई कंपटीशन वाला कीवर्ड है, सो मेरा मंथली एक्सपेंडिचर कितना होगा? बताइए। Can you repeat again, please? ओके, सो अभी मेरे पास आई जस्ट शेयर दी एक्सेल शीट पे, इसको हम लोग एसईओ कैलकुलेशन बोलते हैं। ठीक है, सो आपके सामने ये एक्सेल शीट को बनाते हैं। तो लो कंपटीशन वाले कीवर्ड है, ओके, जिसका 1200 रुपए पर कीवर्ड मेरे पास पर मंथ का कॉस्टिंग है। ओके, तो चलो यहाँ पे डाल देता हूँ कंपटीशन, उसके बाद रेट पर मंथ, ओके, टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स, ओके, एंड नाउ दिस इज टोटल कॉस्ट पर मंथ। ठीक है, चलिए सर तो क्या अभी क्वेश्चन? बताता हूँ ना। सो ये है लो कंपटीशन कीवर्ड, मेरा रेट है 1200 रुपए पर मंथ। मैं अभी 3 कीवर्ड्स को इसमें फोकस करूंगा, सो आई विल बी फोकसिंग 3 कीवर्ड्स इन अ मंथ, ओके, क्योंकि मैं सिर्फ एक कीवर्ड के लिए तो कंटेंट नहीं लिखूंगा, आई विल राइट बी राइटिंग फॉर मल्टीपल कीवर्ड्स। राइट। ओके, तो मेरी इसकी टोटल कॉस्टिंग हो जाएगी 1200 3600। बराबर। ओके, अब मेरा मीडियम वाला है, सो मीडियम का हम लोगों ने प्राइस क्या रखा है? 1500। ओके, ये 2 कीवर्ड्स को मैं अगर फोकस करता हूँ, सो इसकी तो कॉस्ट हो जाएगी 3000। और हाई कंपटीशन वाला है, हम लोगों ने 1800 से 2000 रखी है, तो लेट्स बिगिन विथ 18000 और इसका 1 है। ओके, तो 1800। अगर मैं इसको ऑटो सम करता हूँ, सो विच विल बी कॉस्टिंग 8400 पर मंथ। ओके, तो दिस इज पर मंथ। वही अगर आप, ओके, सो दिस इज गोइंग फॉर दी, अगर वही मैं फॉर 6 मंथ्स करता हूं, So 50,000 around हो गया। into 6 6, okay, this 54,000, is for one 5,000। website, this is for one website। तो अगर सर इसमें मेरे हमें पास 2 ब्लॉग लिखने के लिए कह रहे हैं ना वीक में? नहीं, लो कंपटीशन के हर एक कीवर्ड के उतने ब्लॉग्स, हाई ओके। कंपटीशन मीडियम कंपटीशन के हर एक कीवर्ड के उतने ब्लॉग्स। सो अभी लो कंपटीशन के लिए हम लोग 2 ब्लॉग्स हर एक कीवर्ड के लिए लिखेंगे। यहाँ पे 3 कीवर्ड्स है, 3 into 2, तो that 6 is ब्लॉग्स 6 लिखने ब्लॉग्स इन अ वीक फॉर हाँ, लो और कंपटीशन। लो कंपटीशन। सर ओके एक सर। एक ब्लॉग में 3 कीवर्ड रखने, राइट? एक कीवर्ड के नहीं 3 नहीं, ब्लॉग, एक वीक एक एक कीवर्ड के 3 कीवर्ड पे ब्लॉग। 3 ब्लॉग्स। ओके, हाँ। तो पूरे महीने में 6 ब्लॉग्स हुए, राइट? नहीं, पूरे नहीं। वीक में 6 कह रहे हैं सर लो पूरे के। वीक में बहुत ज्यादा है, पूरे वीक के जो अगर आप ब्लॉग्स देखोगे तो वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हाँ। लो कंपटीशन के 6, 9 मीडियम हो गए सर, कंपटीशन। तब तो 9। चलो यहाँ पे एक काम करते हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स लिख लेते हैं। ओके, तो लो कंपटीशन के ब्लॉक्स कितने हुए थे हम लोगों के? 2। हाई कंपटीशन, सॉरी, ये नहीं सर, 3 वर्ड्स हैं और सबके 2 लिखने थे तो 6 हो गए सर। 2 ब्लॉग्स इन अ वीक है ये पर। ओके, 2 ब्लॉग्स इन अ वीक। मीडियम कंपटीशन के 3 ब्लॉग्स हैं, ओके, और इसके 5 ब्लॉग्स हैं। ओके, तो हाउ डू वी डिसाइड कितने ब्लॉग्स लिखने हैं? वो ये कैलकुलेट। कंपटीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके ओके। हाँ, अभी यहाँ पे टोटल ब्लॉग्स इन अ वीक लिखेंगे। 6। ओके, ओके,
सो अभी ये कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये 6 हो गए लो कंपटीशन के, 6 हो गए मीडियम कंपटीशन के, 5 हो गए हाई कंपटीशन के. सो टोटल इन अ वीक वी आर गोइंग टू राइट 17 blogs 17 blogs for one website. in a week. बहुत In a ज्यादा week. नहीं है 17 ब्लॉग्स इन अ वीक? तो वेबसाइट फर्स्ट पेज पे कैसी आएगी अगर आप ब्लॉग्स नहीं लिखोगे तो मतलब 17 एक वीक में और पूरे मंथ में इंटू 5. नहीं एक 4 वीक का हाँ, मंथ हाँ, होता है हाँ. ना, तो इसको 17 into 4. 4 कर दो. हाँ 68 ब्लॉक्स के लिए हम लोग इसको ये चार्ज 68 ब्लॉग्स के लिए हम 8,400 चार्ज कर रहे हैं. यस. ओके. एक मिनट सर, इसको नोट डाउन करते हैं ना. हाँ मैं इसको शेयर भी कर सकता हूँ आपको. प्लीज Okay. कर दो रोहित. इसमें या इसमें और कर सकते हो क्योंकि ये 68 थोड़ा ज्यादा हुआ है. सो ये सब कीवर्ड्स को मिला के आप उतने ब्लॉक्स लिख सकते हो. सो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग आप अगर टोटल इतने ही ब्लॉक्स लिखते हो आई थिंक तो भी सफिशिएंट है. मतलब 10 ब्लॉक्स, 17 ब्लॉक्स. भैया यहाँ नहीं है. ठीक है. सो अभी अगर आप एक मंथ के लिए अगर आपके पास ये देखो अगर 550,000 का अगर है फॉर 6 months और समझ लीजिए अगर आपके पास सिर्फ 10 वेबसाइट्स भी है फिर भी आप तकरीबन 5 लाख का रेवेन्यू यहाँ से जनरेट कर सकते हैं. और आपको इसके लिए लगेगा क्या, जस्ट यू नीड टू राइट अ कंटेंट which is compliance to the Google जो हम लोगों के 200 रैंकिंग फैक्टर्स और जो 11 एल्गोरिदम्स है उसको पकड़ के आपको वो कंटेंट लिखना है. That's it. सर जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज रहती है इसी का पे करती है, राइट? वो हाँ और सर फिर एक बात तो है, जो अगर हम वेबसाइट कुछ उन्होंने बनाई है, जो उसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ले रहे हैं, वो इसी में आता है. नहीं ये वेबसाइट का थोड़ी, ये सिर्फ एसईओ का है. हाँ, दैट तो इज वो राइटिंग अ वेबसाइट में कंटेंट वो एंड डालेंगे, राइट? ये ब्लॉग्स डालेंगे वेबसाइट में. तो वो भी डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट अगर वर्डप्रेस में है तो आप डायरेक्टली वर्डप्रेस पे लिख सकते हो. अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे नहीं है तो फिर आप उसको अलग से चार्जेस या बोल देंगे कि हम लोग आपके साथ ब्लॉग शेयर करेंगे, आपको जब डालना है जहाँ पे डालना है आप डाल सकते हो. क्योंकि अगर पर सर HTML एक में चीज है या PHP में है सो वी आर नॉट सपोज टू राइट द ब्लॉग्स ओवर देयर. या फिर वो हमें ब्लॉग का कोई एक सेक्शन निकाल के दे देंगे कि आप यहाँ पे लॉग इन करो और यहाँ पे जाके आप ब्लॉग्स लिख दो. दैट कैन बी डन. सो ये पूरा सिचुएशन बेस्ड है इसका आंसर. कोई कोई जो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स रहती है हम्म. तो उसमें तो सिर्फ ब्लॉग्स ही रहते हैं, हम्म. तो वो वर्डप्रेस से ही बना के फिर उसमें रोज रोज डालेंगे. कोई कोई लोग रहते हैं जो रोज डालते हैं, क्योंकि उससे भी रेवेन्यू बहुत जनरेट होता है जो फ्रंट पेज पे रहता है, या क्योंकि एड बहुत चलती है उन पे वेबसाइट्स पे. नहीं अपना हम लोगों ने एल्गोरिदम पढ़ा था गूगल का हाँ. कि अगर आपके वेबसाइट एड सेंट्रिक या एफिलिएटेड हेवी है तो चांसेस आपके कम हो जाते हैं फर्स्ट पेज पे आने के लिए. वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज वेबसाइट जैसे वेबसाइट के लिए वो चीजें वर्कआउट नहीं करती. लेकिन हमारे केस में अगर मेरा डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, अगर उस केस में अगर मैं वेबसाइट बनाता हूँ और मेरे कॉम्पिटिटर्स के वेबसाइट पे एड्स नहीं है, मेरे वेबसाइट पे ऐड है, तो उस केस में मेरे चांसेस कम हो जाते हैं. ब्लॉग लिख के हम लोगों को वेबसाइट को फर्स्ट पेज पे लेके आना है. दैट्स इट. और उससे जो हमारा ऑडियंस सर्च करेगा वो हमें रेवेन्यू देगा. सो यू आर सेइंग कि मतलब चाहे ब्लॉग्स हो या केस स्टडीज हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल आवर बिजनेस इज कम्प्लीटली B2B, राइट? और हम यही दिखा सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए या
किसी भी मल्टीनेशनल एमएसएमई और एसएमई के लिए हमने जो किया उससे उनकी सेल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, अगर हम उसका एक ब्लॉग मतलब केस स्टडी बनाते हैं, राइट, नॉट जस्ट गिविंग द रेगुलर ज्ञान बट द केस स्टडी इंस्टेड ऑफ ब्लॉग, तो would case study work firstly? And the second question is, I mean, I've not read the other part of it of SEO. तो एक तो पहला है केस स्टडी काम करेगा नहीं, और करेगा या नहीं, या मतलब मंथली हमें कितने ब्लॉग्स या केस स्टडीज डालना चाहिए अपने क्लाइंट्स का? अच्छा, तो अभी ये पूरा डिपेंड करता है कि केस स्टडी विल डेफिनेटली वर्क। ओके, सो ऐसा कुछ नहीं है। ब्लॉग्स में क्या आता है कि जो भी चीज आपके वेबसाइट के रिलेटेड है वो सब चीजें ब्लॉग्स में आती है। केस स्टडी, न्यूज अपडेट्स, या फिर कोई एक्स्ट्रा फंक्शन, या फिर कोई नॉलेज शेयरिंग हो गया, ज्ञानबाजी हो गई, वो सब ब्लॉग्स में आता है। अपार्ट फ्रॉम योर फिक्स्ड पेजेस जिसमें होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस सर्विसेज होने के बाद जिसका कंटेंट आप चेंज नहीं कर सकते, उस केस में आपको ब्लॉग राइटिंग लिखना पड़ता है। ओके, ब्लॉग राइटिंग क्यों आया? बिकॉज गूगल सेड इफ यू update the content frequently on your website, there are high chances your website will rank on the first page. तो अभी मैं home, about us, contact us services को तो everyday change नहीं कर सकता, so I need to write a new content on my website, so that's why blog writing came into the existence. So blog writing में हर एक चीज चलेगी जो आपके बिजनेस के साथ कोरिलेट करती है। आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो कि वीडियो प्रोडक्शन बिफोर कोविड, पोस्ट कोविड, ये भी एक टॉपिक के ऊपर आप लिख सकते हो, केस स्टडीज के ऊपर लिख सकते हो, या फिर किसी क्लाइंट का एक्सपीरियंस उसमें आप डाल सकते हो, या आपके वीडियो के वजह से आपके वीडियोस के वजह से क्लाइंट को क्या फायदा हुआ, क्लाइंट को क्या बेनिफिट हुआ, वो भी ब्लॉग राइटिंग में आ सकता है। तो ब्लॉग राइटिंग में आएगा सर? क्यों नहीं आएगा? तो उसको कहाँ पे डालेंगे? बस उसके अलग अलग टैग्स बना दो। केस स्टडी का एक टैग हो गया, अपकमिंग इवेंट्स का एक टैग हो गया, इंपॉर्टेंस का, तो वैसे टैग्स बना के डाल दो। तो मैं सोच रही थी कि वेबसाइट के इसमें अबाउट अस के पेज में केस स्टडीज का एक ये डालूंगी, पर वो ब्लॉग्स का पेज मेरा अलग है वेबसाइट में, उसको तो मैं तो हाँ। तो आप अबाउट अस के पेज पे केस स्टडीज को ज्यादा इलैबोरेट नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि अबाउट अस पेज इटसेल्फ मोर देन 2000 वर्ड्स ऑफ कंटेंट। तो आप उसको केस स्टडीज को ब्लॉग्स में लेके जा सकते हो, या रेगुलर पेजेस में भी डाल सकते हो, वेयर यू कैन इलैबोरेट फॉर 2000 वर्ड्स। कहीं पे भी डालोगे तो आपके वेबसाइट पे ही रहेगा ना। बस इतना है कि ब्लॉग सेक्शन में डालोगे तो कोई भी कमेंट कर सकता है, पेज सेक्शन में डालोगे कोई भी कमेंट नहीं कर सकता। एक इसमें जैसे हमारा एक केस स्टडी है जिसमें जो रिले के स्टोर्स होते हैं एयरपोर्ट पे, उनके लिए जो हमने प्रमोशनल वीडियोस बनाई उससे उनकी सेल्स बढ़ी, तो वी हैव पुट दैट केस स्टडी ऑन आवर वेबसाइट कि इस तरीके से उनकी सेल्स बढ़ी है थ्रू आवर वीडियोस, थ्रू आवर प्रमोशनल वीडियोस। तो उसी में अगेन एसईओ के कीवर्ड्स डाल के वी कैन डू दैट, राइट? ठीक है, एग्जिस्टिंग को भी आप अपडेट कर सकते हो कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करके। ठीक है सर, वन मोर क्वेश्चन सर, जो हमारा डोमेन है, जो हमारा भी एग्जिस्टिंग डोमेन है, उसका हमारा जो होस्टिंग है वो 2-3 में मतलब नेक्स्ट मंथ शायद वो रिन्यूअल मांग रहा है, और वो होस्टिंगर से ले रखा है हमने, तो वो गोडैडी से लें या और किसी से लें, और कितने टाइम का न्यू डोमेन लेना चाहिए, मतलब होस्टिंग लेना चाहिए? कहीं से भी आप ले सकते हो, देयर इज नो यू नो, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ यहीं से लो, बस अच्छे कंपनी से लो ताकि सिक्योरिटी आपको अच्छी मिले। ओके सर। और सर रिन्यूअल हमें 1 ईयर कराना चाहिए, 3 इयर्स का कराना चाहिए, 5 इयर्स का, किस हिसाब से ज्यादा बेनिफिशियल होता है? अभी ये डोमेन करता है, डिपेंड करता है कि आपको आपका बिजनेस कितने टाइम तक चलाना है। हाँ सर, जैसे हमारा तो परमानेंट बिजनेस है यही वाला। हेलो 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 या सो सॉरी, सर, जैसे हमारा तो
नो प्रॉब्लम सर। सर जैसे हमारे पूरा मतलब हमारा तो ये परमानेंट बिजनेस है, लाइक वी हैव अ शोरूम, तो हमारा तो बिजनेस परमानेंट ही है। तो 10 साल के लिए ले लो, सस्ता गिरेगा। अच्छा, हाँ सर, क्योंकि अभी मैं ऑफिस में ही थी, तो अभी मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि रोहित सर से पूछो व्हाट इज बेटर, हम अगर होस्टिंग, क्योंकि हमें नेक्स्ट मंथ रिन्यू करानी ही पड़ेगी। 5 साल 10 साल के लिए ले लो, क्योंकि आपको यही पे यही रखना है लाइफ टाइम। हाँ सर सर, मतलब डोमेन हमारा तो, हाँ 5 साल के लिए क्योंकि ले लो। सर क्योंकि सर हमारा तो जितना ये ज्यादा टाइम परमानेंट के लिए शोरूम लोगे ना, हाँ, उतना जितना सस्ता ज्यादा रहेगा टाइम के हमें। लिए लेंगे उतना सस्ता रहेगा। सर एक ओके ही सर। इसमें कितने सब डोमेन कर सकते हैं हम? आपको वैसे होस्टिंग लेना पड़ेगा सब डोमेन वाला। वो भी साथ ही मैच करेंगे ना, टोटल सारा मैच तो होना चाहिए। अगर एक ही सब डोमेन लेते हैं तो? नहीं, वो सब डोमेन एक हो या मल्टीपल, सब डोमेन का अलग होस्टिंग होता है। तो आप एक बनाओ या 10 बनाओ। ओके। चलो अभी आते हैं एसएमओ के ऊपर, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, जिसके अंदर हमें पेज बनाना है। ओके, उसके ऊपर पोस्ट डालनी है, वो पोस्ट को शेयर करना है 30 अलग अलग ग्रुप्स में। ओके, एक मिनट, आई गॉट अ कॉल। यस, चलो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। अच्छा, क्या लग रहा है आपको अभी? हाँ, हम लोग फेसबुक ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो आप उसको नंबर ऑफ पोस्ट और आप कितने ग्रुप्स में शेयर करेंगे, उस हिसाब से आप उसको कोट कर सकते हो। सो तकरीबन एक 3 से 5 हजार रुपया चलता है, एक पर मंथ, जिसमें आप एक पोस्ट को, ओके, पर वीक 1 पोस्ट एंड यू कैन शेयर इन 20 डिफरेंट ग्रुप्स। उस हिसाब से आप उसको कर सकते हो। ओके, उसी हिसाब से आप 3 पोस्ट पर वीक जो 35 ग्रुप्स पे शेयरिंग होगी, 5 पोस्ट पर वीक जो 50 ग्रुप्स में शेयरिंग होगी। ओके, उस हिसाब से आप उसको कोट कर सकते हो। उसमें आप फेसबुक पे ऑर्गेनिक या फेक लाइक्स भी आप दे सकते हो। सो आई नो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस पॉइंट, फेक लाइक्स क्या होता है, ऑर्गेनिक लाइक्स क्या होता है। आप फेसबुक से लीड जनरेशन ऑर्गेनिकली करके दे सकते हो, और पेज ऑप्टिमाइजेशन या पेज मेंटेनेंस भी आप इसमें रख सकते हो। तो तकरीबन एक
12 से 15 हजार रुपया पर मंथ का चार्जिंग आता है, जिसके अंदर हम लोग ये उसको दे सकते हैं। सो पोस्ट बनानी है, कंटेंट लिखना है, पेज पे डालो, ग्रुप्स पे शेयर करो, कोई मैसेज आता है उसको रिवर्ट करो। ओके, नेगेटिव कमेंट तो हम लोगों ने ऑलरेडी, आपको याद होगा, हम लोगों ने ऑलरेडी ब्लॉक किया है। ओके, राइट। चलिए अब आता है पेड एड्स की बारी। ओके, सो ये पेड एड्स में SMM एंड SEM दोनों चीजें इसमें इन्वॉल्व है। ओके, SMM दैट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड SEM दैट इज सर्च इंजिन मार्केटिंग। ओके, सो अभी जो भी बंदा पर्टिकुलर अमाउंट का कैंपेन करना चाहता है, कि अगर समझ लीजिए कोई भी बंदा 1000 रुपीज पर डे के हिसाब से लगाना चाहता है, तो 30 दिन के बनते हैं 30,000 रुपए। तो उसमें से हम लोग 30% एज एग्जीक्यूशन चार्जेस हम लोग इसमें ले सकते हैं। सो 9,000 रुपए हम लोग उसमें से ले सकते हैं। तो अभी जब बंदे को आप इनवॉइस भेजोगे तो 30,000 स्ट्रेट अवे गो टू फेसबुक और गूगल। इसके ऊपर 18% GST लगेगा, जो आप क्लाइंट से लोगे, गवर्नमेंट को दोगे। उसके ऊपर आपके 30% का एग्जीक्यूशन चार्जेस लगेगा। अगर आपकी GST इनेबल्ड है तो ये 30% के ऊपर फिर से 18% लगेगा। ठीक है, देखो अभी इसमें से 30,000 स्ट्रेट अवे विल गो टू फेसबुक, इसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते। ओके, आपको क्या है, आपके पास एग्जीक्यूशन चार्जेस आप जो 30% ले रहे हैं वो आपको मिलेगा। अब ये 30% में आप क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करोगे? एड्स चलाएंगे, गूगल एड्स चलाएंगे, फेसबुक एड्स चलाएंगे। किसके ऊपर बैठ के? किसके ऊपर बैठ के मतलब? आप बोल रहे हो ना चलाएंगे, इसके लिए पूछ रहा हूँ किसके हाँ ऊपर? मतलब गूगल पे चलाएंगे सर, गूगल पैसा दे, गूगल को पैसे देंगे हम हमारे एड्स रन करने के लिए। और और क्रिएटिव्स बनाएंगे आई गेस, हाँ, कंटेंट लिखेंगे। हम्म, और बस बजट, क्रिएटिव्स बिडिंग। कंटेंट हाँ, ये हो गया, बिडिंग बिडिंग सेट। स्ट्रैटेजी एक हो गया, और हाँ, और और हम एनालिटिक्स चेक करेंगे। एनालिटिकल रिपोर्ट शेयर करेंगे। ओके, हाँ, और बस सर इतना ही है ना। ये सब तो वो यूट्यूब पे वीडियो देख के भी सीख सकता है और कर सकता है। आपको ना 30% देने की क्या जरूरत है? हम्म, What I believe in the end of the at the end of the day, you should know how to sell. वही बात है ना, गंजे को कंघी बेचना आना चाहिए बस। नहीं, वो तो है, तो वो आप उसको इसके ऊपर अब चाहे जितना कमीशन आप लगा सकते हो, बट माय पॉइंट हियर इज कि वो जो 30% है वो क्यों देना चाहिए उसमें? क्या आपका यूएसपी क्या होगा? तो सबसे पहले हम स्ट्रेटेजी। लोगों ने स्ट्रैटेजी हो गया। देखो, यूट्यूब पे ना अगर उसको एड्स मैनेजर या बिजनेस सूट पढ़ना है, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कोई राइट। आप लोगों ने कोर्स आपका कंटेंट देखा है, कितना कितना हौच पौच है उसके अंदर, इट्स नॉट स्ट्रेट अवे। गूगल एड्स की बात करेंगे वो तो नेक्स्ट लेवल ही है। ओके, एंड दैट्स व्हाई वी टेक दिस सेशन एट द एंड ऑफ द कोर्स, आपने देखा होगा, राइट? दूसरी चीज, जो टारगेट ऑडियंस हम लोग डिफाइन करते हैं, रीटारगेटिंग करते हैं, कस्टम ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस, तो ये सब चीजें उसको पता नहीं है। तो हम लोग स्ट्रैटेजी ड्राफ्ट करके हम लोग उसको डिफाइन करेंगे और फिर हम लोग उसको रन करेंगे। अभी कंटेंट आ गया, क्रिएटिविटी आ गई, स्ट्रैटेजी आ गई, ऑडियंस आ गया, सब कुछ सेट हो गया। उसके बाद यू हैव टू वॉच योर एड एटलीस्ट ट्वाइस इन अ डे, ताकि आपको ये पता चले कि जो ऑडियंस के पास रीच हो रही है, क्या वो एग्जैक्ट ऑडियंस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आपकी एड कहीं और जा रही है। राइट। ओके, तो अगर कहीं और जा रही है तो आपको उसको पिवोट करके, नेविगेट करके करेक्ट डायरेक्शन में लेके जाना है। और ये अल्टरेशन, ये चेंजेस के लिए द क्लाइंट इज गोइंग टू पे, क्योंकि उसके पास उतना टाइम है नहीं ना।
दिन में 2 बार ऐड चेक करो, करेक्ट ऑडियंस आ रहा है या नहीं आ रहा है, गलत आ रहा है तो उसको पिवोट करो, नेविगेट करो, प्रॉपर डायरेक्शन दो। बहुत बार ऐड कंटेंट बदलना पड़ता है, बहुत बार ऑडियंस को इतना नैरो डाउन करना पड़ता है कि आपको एग्जैक्ट ऑडियंस आए। ठीक है, हम लोगों ने फेसबुक में देखा था कि भले ही हमारे पास 100 के जगह पे 50 आए, लेकिन वो 50 काम के होने चाहिए। राइट। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी चार्ज। अब मैं इतना जो बड़बड़ कर रहा हूँ, तो आप उतनी बड़बड़ सामने करेंगे तो भी आपको क्लाइंट जो है वो पैसा। कन्विंस होगी। हाँ, नहीं तो अगर आप ऐसा क्लाइंट बोलो को कन्विंस करना इजी थोड़ी ना है ऐसे। अब कृपी ने समझा दिया कि स्ट्रैटेजी क्या है, गंजे को कंघी बेचना ही है, तो कुछ तो सेटिंग करनी ही पड़ेगी। मैंने ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने कॉर्पोरेट से लेके गवर्नमेंट से लेके मतलब जो स्मॉल बिजनेसेस हैं सबके साथ काम किया है। आई अंडरस्टैंड उनको ना, मतलब अगर आप सीधा सीधा बात बताओगे उनको नहीं समझेगा। आप ऐसे 4-5 शब्द फेंक के मारो, वो ऐसे ऐसे सर खुजा रहा होगा कि बोलेगा हाँ तो सबसे बोलेंगे हाँ इसको बहुत नॉलेज है, ये कर सकते हैं। आपको बस बेचना आना चाहिए। यू कैन, इफ यू नो हाउ टू सेल यू कैन डू इट। yes, You are to if the you know point. how to Correct. sell you can get the fundings as well. Yes, correct, correct, correct. ठीक है, चलिए। अब आपका कस्टमर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये कुछ बेबी स्टेप्स है जो मेरे एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में मैंने फॉलो किए थे। ओके, तो 10-12 साल पहले, जैसे कि आप डेटाबेस चेक कर सकते हो फेसबुक से, इंडिया मार्ट या ट्रेड इंडिया से। जिनकी वेबसाइट नहीं है पहले उनको वेबसाइट पिच करो, फिर एसईओ पिच करो, फिर सोशल मीडिया पिच करो, फिर पेड एड्स पिच करो। अगर वेबसाइट है तो चेक करो, अगर वर्डप्रेस पे है, नहीं है तो वर्डप्रेस का ऑप्शन दो, अगर है तो एसईओ का ऑप्शन या पेड एड्स का ऑप्शन दो। ओके, इस हिसाब से आप जा सकते हो। नहीं कुछ तो आप सोशल मीडिया इंटीग्रेशन उसको दे सकते हैं, पेड एड्स उसको दे सकते हैं। ओके, एंड स्टेप बाय स्टेप आप ग्रो कर सकते हो। बट इन द बिगिनिंग ऑफ योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी ऑलवेज लुक अराउंड फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि आपके पास एक 4-5 भी वेबसाइट हो गई ना, जिसको हम लोग पोर्टफोलियो बोलते हैं। 4-5 वेबसाइट, 2-3 एसईओ, जो आप बोल सकते हो कि अरे ये तो गूगल पे डाल, ये वेबसाइट फर्स्ट पेज पे आ रही है, ये मैंने काम करके दिया। तो एक कुछ दिखाने के लिए रहेगा तो सामने वाला आपको फिर अच्छे से एंटरटेन करेगा। अभी कौन सा कस्टमर डिजिटल मार्केटिंग को अवेल करेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले जिनका कोई भी डिजिटल प्रेजेंस नहीं है, वो हमारे लिए एकदम आइडियल कस्टमर होंगे। ठीक है, रियल एस्टेट जैसे जो बिजनेसेस है जिसमें एग्रीगेटर्स आर मोर, तो इसको कभी भी एसईओ नहीं होगा। एसईओ नहीं बेचना है। ओके, राइट। तो उसको हम लोग क्या बेचेंगे, रियल एस्टेट को एसईओ तो नहीं करना है, तो क्या बेचेंगे, ऐड करेंगे कौन गूगल सा, एड्स। गूगल एड्स। और अगर कोई प्रीमियम रियल एस्टेट वाला है तो उसको लिंक्डइन भी सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, जो हॉबी क्लासेस है, जो सोलो ट्रेनर हम लोग उसको बोलते हैं, सोलो ट्रेनर के लिए जो लोकेशन स्पेसिफिक बिजनेसेस होते हैं, उसके लिए आप वेबसाइट और सोशल मीडिया इतना ही दे सकते हो, एसईओ का उतना जरूरत नहीं है, गूगल एड्स का उतना जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है, जैसे अभी डांस क्लास है या केक क्लास है, फोटोग्राफी क्लास है, तो मैं यहाँ से चंडीगढ़ नहीं जाऊंगा वो क्लास करने के लिए, अनलेस एंड अनटिल इट इज रियली बिग ब्रांड या कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नहीं है। राइट। ठीक है, नहीं, if we say for example in a particular area in Delhi, right, if we are saying कि तिलक नगर है, वहाँ पे कोई डांस क्लास चला रहा है, so can we do Facebook ads in that particular area? यस, हम वही कर सकते हैं उसके लिए, क्योंकि उसको एसईओ करके एसईओ का उसको नहीं जमेगा, क्योंकि पहले वेबसाइट बनानी पड़ेगी। तो सर बेसिक 15,000 भी वेबसाइट का पकड़ के चलो, फिर एसईओ का 10,000 रुपीज पर मंथ भी पकड़ के चलो, तो तुरंत 1 महीने में रिजल्ट नहीं आएगा, तो 5 महीने के लगेंगे 50,000। सो पूरे अगर आप 6-7 महीने का देखोगे 60-70 हजार रुपए का कॉस्टिंग आ जाएगा। उससे अच्छा वो अगर 20,000 भी फेसबुक पे चलाए, 20,000 भी स्पेंड करे फेसबुक को, उसकी अच्छी खासी लीड्स आएगी। तो पेड एड्स की बात कर रहे हैं ना फिर आप? हाँ, पेड एड्स की बात कर रहा हूँ मैं, सोलो ट्रेनर के लिए। So
रियल एस्टेट के लिए उसको फेसबुक एड्स बोले, रियल एस्टेट के लिए, राइट? Google search ad. To be very precisely, Google search ad is the best suggestion for them. Google search ad is best. Yes. Okay. And या how about LinkedIn. and how about Google My Business वाला जो होता है, where you set up everything, you know? उसमें क्या है, उसमें बस आपका लोकेशन आ जाता है गूगल मैप पे, और जितने ज्यादा रिव्यूज बढ़ते हैं उतनी आपकी पोजीशनिंग फर्स्ट पेज पे आती है। लेकिन अभी क्या है कि गूगल के नए एल्गोरिदम के हिसाब से अगर आपके वो रिव्यूज प्रॉपर अकाउंट से नहीं आ रहे ना, तो वो रिव्यूज का कोई मीनिंग नहीं है। Okay. बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट Just to maintain transparency. हाँ। Also, अगर जैसे हमें, for example, my office is in Aero City, मुझे एरो सिटी का लोकेशन पिन करना है। एक होता है ना पिन करके जहाँ पे आपका एड्रेस आ जाता है कि AVW स्टोरी टेलर्स, और वो मतलब आप गूगल में कहीं टाइप करेंगे या कहीं भी टाइप करेंगे तो वो आपके नाम से ही एड्रेस भी आ जाता है। तो इफ यू कैन प्लीज टेल मी हाउ डू वी डू दैट? सो ये क्रीपी ऑलरेडी हम लोग का टॉपिक है, जो हम लोग इसमें कवर करते हैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन पे। ओके, गूगल माय बिजनेस या गूगल बिजनेस में ये चीजें आती है। ठीक है, ठीक है। ये हो गया हाउ यू कैन आइडेंटिफाई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस स्ट्रैटेजी। ओके, सो अभी जेंडर स्पेसिफिक सैलून है, ओके, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मार्केट है एज अ फीमेल एंटरप्रेन्योर, जो आप उसको केटर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे मेल्स अलाउड नहीं है, तो 50% कंपटीशन कम हो गई। ओके, उसके बाद एज अ फीमेल यू कैन अंडरस्टैंड देयर ऑडियंस एंड देयर बिजनेस वेल, एंड इट्स कंप्लीटली अनटैप्ड राइट नाउ। सो आपके एरिया में जितने भी सैलून है, जेंडर स्पेसिफिक की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूनिसेक्स लाइक जावेद अबीब एंड लैक्मे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो छोटे भी होते हैं सैलून, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो उनको आप वेबसाइट के जगह पे आप एसएमओ, जो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसमें फेसबुक को ही आप केटर करके आप उनको थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यू कैन जनरेट लाइक्स, यू कैन जनरेट एंगेजमेंट, यू कैन जनरेट लीड्स, कॉल्स एंड वॉकिंग विच विल एनहांस देयर बिजनेस। इसमें एक चीज याद रखो, ये एक बिजनेस ऐसा है कि जिसके पास पोटेंशियल है मार्केटिंग में स्पेंड करने का, बट दे डोंट हैव मच मोर ऑप्शंस। वो क्या करते, सिर्फ एक बाहर बोर्ड लगा देते हैं। ओके, वो पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, वो न्यूज़पेपर पे ऐड नहीं दे सकते। व्हाई? बिकॉज इट इज प्योरली जेंडर स्पेसिफिक। तो क्या गारंटी कि न्यूज़पेपर सिर्फ लेडीज पढ़ेंगे या पैम्पलेट सिर्फ लेडीज पढ़ेंगे? सो दैट्स व्हाई फेसबुक, इंस्टाग्राम इज द बेस्ट टूल फॉर दैम। Okay, I would be happy if you get few clients from this. Okay, और मैं अभी पुणे में एक सैलून के एसोसिएशन के साथ बात हो रही है, तो मेरा एक सेशन होगा मोस्टली इन द मंथ ऑफ मे, 2 दिन का ऑफलाइन सेशन, जहाँ पे 40-50 सैलून ओनर विल कम एंड आई जस्ट टीच देम अबाउट फेसबुक, दैट्स इट, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो ये एक चीज हो गई। फिर अभी यही अगर मैं बात करूं रंका ज्वेलर्स या कोई ज्वेलर्स की, तो उसका और एक सैलून का बिजनेस बहुत अलग है, उसका ऑडियंस बहुत अलग है। ओके, तो अभी इसका बजट भी अलग हो जाता है और इसमें आप सब जगह पे केटर कर सकते हैं। पहली चीज तो वेबसाइट, तो क्या हम लोग उसको नई वेबसाइट पिच करेंगे या एग्जिस्टिंग वेबसाइट में चेंजेस कराएंगे? क्या लगता है आपको? Also depending on the website. अच्छा, डिपेंडिंग ऑन दी वेबसाइट। ओके, तो अगर एग्जिस्टिंग वेबसाइट को अगर हमें चेंजेस करने, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? UI UX. UI UX, ओके, प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वो चीजें यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद हम लोग एसईओ क्या कर सकते हैं उसका? कैन वी डू दी एसईओ? Yes. कैन वी डू एसईओ फॉर अ ज्वेलर? Yes, we can. नहीं, वैसे जरूरत नहीं होगा जो का, अगर पर्टिकुलर एरिया में ही है, सिर्फ अगर
somebody like Tanishq and कल्याण जी। ज्वेलर्स, वो उनका तो SEO करने का वो मतलब ज्यादा चलेगा ना, सोशल मीडिया मार्केटिंग ज्यादा चलेगी, जिसमें पहले एसईओ की बात करते हैं। अब मैं एसईओ के लिए आप बोल रहे हो कि हम लोग कर सकते हैं, सो माय क्रॉस क्वेश्चन वुड बी, कितने लोग गूगल पे ज्वेलरी शॉप सर्च करके जाएंगे? if it is a रेयरेस्ट very ऑफ रेयरेस्ट सर, क्योंकि बेसिकली ज्वेलरी शॉप तो फिर उस हिसाब से हो गई ना कि आपका जो ब्रांड नेम चल रहा है या जो है उसी पे जाएगा कोई उस पे। और अगर ज्वेलरी मुझे शॉप लोकेशन भी ढूंढना है, समझ लो मुझे कल्याण ज्वेलर्स का लोकेशन ढूंढना है, सो व्हाट आई विल पुट कल्याण ज्वेलर्स इन पुणे, डायरेक्टली मैं ब्रांडेड कीवर्ड डालूंगा। यस सर, सो लेट्स SEO की जरूरत नहीं है, एसईओ come की back to जरूरत तो है ही नहीं है। एसईओ, बेसिक एसईओ की जरूरत है। हाँ, हाँ, पर बेसिक सर एसईओ बहुत ज्यादा मतलब टाइटल, Keyword डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड कीवर्ड सर्चिंग एंड गूगल माय बिजनेस, और बेसिक जो अपना जर्स डायल वगैरह जो हम लोगों ने पढ़ा है, राइट। ओके, वो वहां पे यूजफुल होगा। नाउ अबाउट एसएमओ, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, क्या जरूरत लगेगी उसकी? हाँ, yes ऑफर्स चलते हैं या कुछ भी चलता है, और मोस्टली बताने के लिए चल सकता है बस। तो उससे अच्छा मैं ब्रांड अवेयरनेस ना कर दूं, उसके पास तो बजट भरा पड़ा है। कर सकते मैं हैं, फेसबुक पे जाऊंगा, ब्रांड ब्रांड अवेयरनेस अवेयरनेस करेंगे, हाँ, एड्स चलेंगे, ऑप्टिमाइजेशन का जरूरत नहीं है। बस निगेटिव कमेंट्स को हाइड कर देंगे और इंस्टेंट रिप्लाई कर देंगे। राइट। अब आता है पेड एड्स, एसएमएम। अब इसमें क्या करेंगे? ये तो करना, ये तो फॉर श्योर है। तो अब इसको स्ट्रैटेजी करते टाइम क्या हम लोग जेंडर को फोकस करेंगे, क्या Of हम लोग course. एज को फोकस करेंगे, या हम लोग लोकेशन को फोकस करेंगे? जेंडर जेंडर को स्पेसिफिक करेंगे, जेंडर को ज्यादा करेंगे सर इसमें तो। ओके, कौन सा ऑब्जेक्टिव लेंगे? ब्रांड अवेयरनेस, लीड जनरेशन ले सकते हैं क्या? लीड जनरेशन ले सकते हैं ना सर। लीड आने के बाद कौन उसको कॉल करेगा? आपने कभी देखा है ज्वेलरी शॉप से कॉल आया है वो कि तो आपने नहीं, लीड ब्रांड है। अवेयरनेस वो ही है सर, ब्रांड अवेयरनेस ही है, तो लेकिन ब्रांड अवेयरनेस ही चाहिए बस। और पेज लाइक कर सकते हैं आप, या हाँ। फिर वीडियो व्यूज, बैक्स टू बैक्स। लीड जनरेशन या वेबसाइट विजिट भी उतना काम नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है? तो अभी आप बोल रहे हो कि एज को भी कैटर करेंगे, जेंडर को भी कैटर करेंगे, तो क्या अलग अलग ऐड चलाएंगे? एड ग्रुप्स चलाएंगे अलग अलग, डायरेक्टली ऐड ग्रुप्स? हाँ, एड्स चला सकते हैं। हाँ ना सर, दो ऑब्जेक्टिव्स में अलग अलग एड्स चला सकते हैं ना सर। मुझे क्या पता। एक इसमें हम जेंडर भी सिलेक्ट कर सकते हैं और एज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसी को एक ऐड भी दिखा सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं ना। ऑब्जेक्टिव्स में तो इतने सारे सर ऑप्शंस रहते हैं, सॉरी, ऑडियंस में इतने सारे ऑप्शंस रहते हैं हमको सिलेक्ट करने के लिए। ओके, सो अभी इसमें ना आप जो बोल रहे हो उसको थोड़ा अगर हम लोग इलैबोरेट करेंगे और पॉलिश करेंगे ना, तो प्रोडक्ट वाइज आपको ऑडियंस सिलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई मंगलसूत्र है या उसकी कोई नई डिजाइनिंग है, तो न्यूली वेड या न्यूली इंगेज को आप दिखा सकते हो, ठीक है? कोई अगर जेंजी का प्रोडक्ट है, मिलेनियर का प्रोडक्ट है, तो आप जेंजी को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर कोई मेंस ब्रेसलेट है तो सिर्फ मेंस को आप केटर कर सकते हो। सो बेसिकली प्रोडक्ट वाइज यू हैव टू डिफाइन द ऑडियंस एंड यू हैव टू रन मल्टीपल एड्स ऑन एसएमएम। ओके, एसएमएम में अबाउट एसईएम में कौन सा टाइप ऑफ एड चलाएंगे? सर्च, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो? सर्च एड चलाएंगे? डिस्प्ले सर डिस्प्ले एंड वीडियोस ज्यादा सही हैं। सर्च पे भी डाल सकते हैं सर। वीडियोस को रीटारगेट करेंगे, किसको? वेबसाइट विजिटर को, सोशल मीडिया के विजिटर्स को, एंड द डेटा, द एग्जिस्टिंग कस्टमर डेटा, और यू कैन परचेज द डेटा जिसको आप अपलोड कर दो।
तो उनके यूट्यूब के चैनल्स पे हमारा वीडियो दिखेगा, क्योंकि वीडियो में आप उस प्रोडक्ट को बेहतरीन एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सर अगर ज्वेलरी नहीं यार, एक मिनट है, ज्वेलरी नहीं अरे है। हम लोग का नाउ वी आर एक्सटेंडिंग द टाइम। आपको अगर कंक्लूड करना है कर सकते हैं, क्योंकि अभी 1 बजने को आया। नहीं नहीं ठीक है, बराबर है सर, उन्होंने सर्च ऐड नहीं चलाया, बहुत कम है, सर्च कर रही थी मैं, जस्ट डायल पे है या तो फिर गूगल माय बिजनेस पे है। ठीक है, अग्री। हाँ ओके, यस। सो ये सलोन के लिए मैंने लिखा था। You can do these different case studies, colleges, schools, immigration, hospital, FMCG. FMCG मतलब fast moving consumer goods, जो अपना बिस्किट, तेल, साबुन सब इसमें आ जाता है। रियल एस्टेट, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग। ओके, so this is from my end about entrepreneurship journey in digital marketing. सो आपको कुछ भी डाउट्स या कुछ भी क्वेश्चंस है इसके अंदर, बिफोर वी कंक्लूड द टुडेस टॉपिक? आपको क्या लग रहा है, मैंने कॉस्टिंग कम बताई है, ज्यादा बताई है? बहुत कम बताई है, मतलब इसमें तो रिसोर्स का आपने कॉस्ट लगाया ही नहीं है। क्योंकि इसमें मैंने ये कंसीडर किया है, क्योंकि इसमें मैंने क्या कंसीडर किया है कि आप ही खुद रिसोर्स हो, यू आर अच्छा, बिगिनिंग योर जर्नी। Here, this presentation is not for the established brand. This is for a person जिसने अभी क्लास किया है और उसको फ्रीलांसिंग या डिजिटल मार्केटिंग का जर्नी चालू करना है, राइट। जो एक सोलोप्रेनर के तौर से वो आ रहा है। क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं वेबसाइट का 30,000 कोट कर दूं और सामने वाले से कुछ रिप्लाई, पॉजिटिव रिप्लाई की जगह अगर वो ब्लॉक हो गया, तो एक सोलोप्रेनर को वो नहीं ये स्टेज में कंफर्टेबल होगा। वही अगर मैं 30,000 का 15 कर दूं, भले ही मुझे थोड़ा कम मिले, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस आएगा, मेरा पोर्टफोलियो बिल्ड होगा। राइट। और सर जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज रहती है, तो वो कितना पर्टिकुलरली कोट कर सकते हैं, मतलब वो कितना करते हैं मार्केट में, जैसे कंपटीशन तो बहुत इससे है। हाँ, तो अभी उसके लिए आप एक काम करो कि आप है ना मल्टीपल वेबसाइट्स पे जाके कंटेंट को देखो कि कौन सा कॉम्पिटिटर कितने में बेच रहा है, तो आपको एक्चुअल आइडिया आ जाएगा। वहां पे रहती है क्या सर उनकी प्राइसिंग? क्यों नहीं होती, इससे कम वाले भी मिलेंगे, इससे ज्यादा वाले भी मिलेंगे। इट्स अप टू यू वेयर यू वांट टू फिट योरसेल्फ एंड हाउ यू कन्विंस योर क्लाइंट। जैसे मैं पहले पीएचपी में करती थी, उनकी एक वेबसाइट थी, तो वो था 50,000 नियर अबाउट वो सर चार्ज कर रहे थे पर मंथ। पर मंथ नहीं, मतलब वो वेबसाइट बनाने के लिए। तो वो पीएचपी की हो गई ना, तो उसमें आपको यूआई डिजाइनर लगेगा, हाँ बैकएंड लगेगा। तो हाँ। क्या वो ई कॉमर्स वेबसाइट थी या नॉर्मल वेबसाइट थी? नहीं उसमें नहीं, फंक्शनैलिटी क्या थी? हाँ फंक्शनलिटी बहुत ज्यादा थी, पेजेस बहुत ज्यादा थे, और उनकी ना मराठी और इंग्लिश दोनों में थे, लैंग्वेज का भी था। मतलब वो 25,000 रुपए पर वेबसाइट हो गई ना, दो डुअल अलग अलग। डुअल लैंग्वेज हो गई ना। वर्डप्रेस पे वो अच्छी बात है कि आपको मल्टीलिंगुअल का प्लगइन मिल जाएगा। राइट, पीएचपी में तो आपको दोनों पेजेस मराठी और इंग्लिश अलग में अलग खुद अलग लिखने बनाने पड़ते हैं। हाँ ठीक है सर। हैं। ठीक है, सो एनी सजेशंस, एनीथिंग फ्रॉम जब हम एंटरप्रेन्योरशिप? जब मैं प्रोजेक्ट Would you be able का तब आपसे फिर से पूछूंगी। would you be able to share this slide, because Yes. though I have made notes, but bad handwriting, मेरा ये नोट्स कोई ऑफिस में नहीं पढ़ पाएगा। नहीं, मेरा तो बिल्कुल शेयर मत करो। वो बोलेंगे मैम 10,000 ही आपने बोला था, वो 10,000 का कोट कर देंगे और नहीं, अंडरस्टैंडिंग। मैं एडिट करके आगे दे दूंगी। तुम लोग को ऐसे भेजूंगी नहीं मैं। हाँ सर, इसका ये दे दो, पीपीटी भेज दो ना। ठीक है, डेफिनेटली। ओके ठीक है, एनीथिंग और एल्स? सर आप ये हाँ, और सर वो जो हाँ आपने सर अभी ये बनाया था एक्सेल पे, वो कैलकुलेशंस भी भेज देना ना।
ठीक है चलेगा। सर ये रिकॉर्डिंग भी आप इसलिए वो सब पूजा को भी भेज दीजिएगा रिकॉर्डिंग, क्योंकि हाँ, उसका yes, मेरे पास ही मैसेज मैं आया। इसको मैं अभी है ना आज रात को यूट्यूब पे डालता हूँ, यूट्यूब का लिंक भी शेयर करता हूँ, तो वहां से ठीक आप है एक्सेस कर लेना। ठीक है कह रहे कैसे है सर का YouTube ओके, चलो देन गाइस, सी यू सर इन आप मेल पे ही डाल दीजिए, सर सर आप एफिलिएट मेल पे ही डाल मार्केटिंग रह दीजिए। गया है, उसका एक सेशन कब करेंगे? हाँ एफिलिएट मार्केटिंग का एफिलिएट का मैं डालता हूँ ना ग्रुप पे, ओके नेक्स्ट वीक करेंगे। और सर फिर अब हमारी क्लास मंडे। मैं ग्रुप पे डालता हूँ एक्चुअली। ओके ठीक है चलो चलिए ठीक है चलो सर। थैंक यू बाय गाइस, सी ओके यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर।